Hello students. In the last video we have seen associativity property regarding to the whole numbers and after that associativity property of integers. Today I am here same property regarding to rational numbers. As you know that before that we have seen many times in the closure property, in the commutativity property, addition कैसे करना है rational number का, subtraction कैसे करना है rational number का, multiplication कैसे करना है rational number का, division कैसे करना है. तो आज हम शॉर्टकट में ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखेंगे. क्या है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी? ओके, उसका एक्सप्लेनेशन नोट्स में मैंने पूरी तरह से दिया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इधर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. स्मॉल एंड शॉर्ट बट स्वीट वी विल सी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट? बिकॉज नाउ यू नो दैट वेरी वेल हाउ टू डू एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. तो बार बार एडिशन करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं. नाउ यू नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, multiplication of rational number, division of rational number, same thing we are going to carry again over here. Only small change is there, associativity. What is that associativity? That I am going to explain. Okay, now look here, addition. Addition means associativity. In that first operation I have taken, that is addition. And for that purpose I am going to take here one example, and that example will be like that. Look here, suppose example is minus 2 divided by 3 plus in bracket 3 divided by 5 plus minus 5 divided by 6. ये है small change associativity का. In the last video we have seen regarding to the whole numbers and integers what is the small change. In the first point what we are doing, we are trying to add, we are keeping first number outside and remaining two numbers we are taking in the bracket. As you know that we have to consider first number is A, second number we are considering B, and say third number we have to consider C. Means we can say A outside के bracket के outside में और B और C bracket के inside में. Okay, तो हमें पहले ये देखना है after adding this what we are getting the answer. एडिशन में सॉल्व करके दिखाता हूँ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम डायरेक्टली जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, now look here, as you know that what we are doing cross multiplication. Like that we will continue over here. Is equal to minus 2 divided by 3 plus, first of all what we have to do, first of all we have to solve this bracket solve करेंगे. तो bracket में क्या आएगा देखो, cross multiply 3 divided by 5. Before that cross multiply we will what we will do, look here minus sign is there, plus into minus means 3 divided by 5 minus 5 divided by 6 is equal to what I did as usual. जैसे हमने कम्यूटेटिविटी में एडिशन किया था ना, वैसे ही एडिशन करना है. ओनली हियर 3 numbers are there, nothing else. Okay, that only the small change is equal to minus 2 divided by 3 plus in the bracket we will cross multiply 3 into 6, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3 into 6 एंड 5 into 5. 3 into 6 कितना आता है 18. बीच में साइन कौन सा है माइनस. ओके, 5 into 5 क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 5 into 6 क्या होगा 30. एम आई राइट? ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू minus 2 divided by 3 प्लस, बीच में साइन कौन सा है प्लस. ओके, अभी ये सॉल्व करेंगे. क्या सॉल्व करेंगे देखो, 18 minus 25, 18 minus 25. ओके, 18 minus 25 एंड ये डिवाइडेड बाय 30. 18 minus 25 कितना आता है 18 minus 25 minus 7 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, आर यू गेटिंग व्हाट आई हैव रिटन, minus 7 divided by 30. Okay, now look here what we will do, minus 2 by 3 as it is this, बीच में साइन कौन सा है प्लस. तो अभी क्या होगा प्लस इंटू माइनस, minus 7 divided by 30 is equal to, again cross multiplication, minus 2 into 30. okay, minus 2 into 30, बीच में साइन है माइनस. एम आई राइट? 3 into 7, क्या किया पहले माइनस 2 into 30, बीच में साइन है माइनस, तो माइनस 3 into 7 डिवाइडेड बाय 3 into 30. ओके, इज इक्वल टू
माइनस 2 इंटू 30, माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 इंटू 30 60, बीच में साइन कौन सा, माइनस, माइनस 2 इंटू, लुक हियर, माइनस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 30 कितना, 2 इंटू 30 कितना आंसर आया 60। अभी बीच में साइन कौन सा है देखो, माइनस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना आता है 21, यानी कि क्या होगा -21 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर देखो 3 इंटू 3 9, यानी कि 30 इंटू 3 90, गॉट आइडिया, इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस, बोथ आर माइनस, माइनस माइनस में प्लस नहीं होता, ध्यान में रखो, ओके, if both are minus or both are plus then we have to do addition, means same sign addition, opposite sign subtraction, okay, 60 plus 21 करो पहले, क्या आता है देखो 81, साइन कौन सा है माइनस, तो माइनस 81, व्हाट आइडिया, डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं इधर, किस नंबर से, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म भी दे सकते हैं, किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है, देखो माइनस 9 9 जार 81, 9 10 जार 10 जार 9 10 जार 90, तो ये हो गया पहला देखा हमने, यानी कि a इन ब्रैकेट b प्लस सी, एंड दूसरा है b, दूसरे का एडिशन देखेंगे, यानी कि क्या, पहला और दूसरा बॉक्स में, यानी कि ब्रैकेट में, और थर्ड नंबर आउटसाइड, -2/3 प्लस 3/5 outside the bracket plus -5/6, ओके, am I right? तो एडिशन करेंगे, देखो अभी इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -2 इंटू 5 -10, बीच में साइन है प्लस, 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 15, आउटसाइड द ब्रैकेट प्लस, आउटसाइड द ब्रैकेट प्लस -5/6, ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट इज इक्वल टू -10 प्लस 9, -10 प्लस 9, यानी कि इधर देखो क्या है, -10 प्लस 9, -10 प्लस 9, यानी कि क्या है, इधर अपोजिट साइंस है, क्या इधर, यानी कि क्या, मेरे बोलने का मतलब है हियर अपोजिट साइंस आर देयर, तो 9 में से 10 नहीं जा सकते, तो 10 में से 9 जा सकते हैं, 10 में से 9 गए, कितने आ गए 1, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है 10, 10 का साइन कौन सा है माइनस, यानी कि कितना आएगा आंसर -1 डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइड बाय कितने 15, ओके, नेक्स्ट प्लस, इधर देखो अभी -5 -6 इन द ब्रैकेट, -5 -6, गॉट आइडिया व्हाट वी गॉट, आई हैव सॉल्व दिस, -10 प्लस 9 -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज, प्लस साइन एज इट इज, -5 डिवाइड बाय 6 एज इट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस इंटू माइनस -5 डिवाइडेड बाय 6, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी आर गेटिंग, सी once again we will see again, okay, look here I am going to start, minus into plus, minus 1 into 6 6, बीच में साइन है माइनस, 15 इंटू 5 15 इंटू 5 75 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6 90, गॉट आइडिया व्हाट आई हैव रिटन, माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 इंटू 6 6, बीच में साइन माइनस एज इट इज माइनस, 15 इंटू 5 75, बोथ आर प्लस, दैट्स वाई प्लस प्लस, ये साइन इधर नहीं कंसिडर करना है, और ये इधर माइनस प्लस इंटू माइनस, इधर माइनस नहीं लिखना है, आर यू गेटिंग, बीच में साइन कौन सा है वही लिखना है, तो सम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये माइनस साइन इधर लिखते हैं, और 15 इंटू 5 भी -75 लिखते हैं, और बाद में वो प्लस हो जाता है, और बाद में आंसर गलत आता है, आर यू गेटिंग, इसलिए मैं बोला माइनस बीच में का साइन एज इट इज, 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 6 90 इज इक्वल टू, सेम साइन एडिशन, 75 प्लस 6 81, साइन कौन सा है माइनस 81 डिवाइडेड बाय 90, अगर डिवाइड करोगे तो -9 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया देखो, -9 डिवाइडेड बाय 10, ये देखो सेम है आंसर, तो इधर क्या लिखेंगे देखो अभी,
ओके ये देखो एडिशन के लिए हमें इतना सॉल्व करना पड़ा है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी इतना सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इतना सॉल्व करना पड़ेगा और डिवीजन के लिए भी इतना सॉल्व करना पड़ेगा। अभी एडिशन कैसे करना है बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं एडिशन ये डीपली दिखा रहा हूँ और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में हम शॉर्टकट में लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स पे मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया, वो एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। ओके तो इधर आंसर कैसे लिखना है देखो, हियर a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी, राइट, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी किस लिए, a आउटसाइड के ब्रैकेट है देखो और ये दोनों ब्रैकेट में है। ओके b प्लस सी इज इक्वल टू, अगर लिखते वक्त ऐसे भी लिख रहे हो तुम ये इस साइड को और रिमेनिंग जो इस साइड को लिखने वाले, क्या लिखने वाले देखो हम अभी ये देखो a प्लस बी हमने ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि थर्ड नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट है। आर यू गेटिंग? तो इधर मैंने क्या लिखा देखो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट a प्लस बी प्लस आउटसाइड द ब्रैकेट c। अगर a इस साइड को लिखा और a इस साइड को लिखा तो भी चलता है, समझ में आ रहा है? ओके बोथ आर नाउ इक्वल, -9 डिवाइड बाय 10 -9 डिवाइड बाय 10, अदरवाइज वी कैन से -81 डिवाइड बाय 19 90 -81 डिवाइड बाय 90। आर यू गेटिंग? मीन्स बोथ आर सेम। तो कैसे लिखेंगे, फॉर एनी थ्री, क्या लिखा है देखो, हियर a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इन द ब्रैकेट, इधर देखो a प्लस इन द ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट क्या आउटसाइड द ब्रैकेट c, फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स, फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स। ओके ऐसा हमने लिखा था होल नंबर के बारे में, इंटीजर के बारे में ही, फॉर एनी थ्री नेचुरल नंबर्स, कौन कौन से, एनी थ्री रैशनल नंबर्स कौन कौन से, a b एंड c। ओके पहले नंबर को हम कंसिडर करते हैं a, दूसरा b और तीसरा c, इसलिए मैंने लिखा है a b एंड c। व्हाट वी हैव टू राइट, हेंस एडिशन is associative for rational numbers। Are you getting? Addition is associative for rational numbers। ये है addition property और addition operation regarding to which property, associative property, associativity property regarding to which numbers, rational numbers। समझ में आ रहा है? ओके ऐसा एडिशन करना है। बाद में अभी सब्ट्रैक्शन देखेंगे, इधर देखो इसके मैं दो पार्ट्स बना देता हूँ पेज के। दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। ओके दूसरा ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इधर, -2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इन द ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाय 5 -1/2। ओके -2 डिवाइड बाय 3 माइनस इन द ब्रैकेट -4 डिवाइड बाय 5 -1/2। इसका अगर हम अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी सब्ट्रैक्शन करके दिखाने की आई थिंक देयर इज नो नीड, नोट्स में मैंने पूरा दिखाया है। इधर मैं अभी डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। देखो इसका सब्ट्रैक्शन आता है 19 डिवाइडेड बाय 30। तुम करके देखो, बाद में तुम्हें पता चलेगा। एंड अभी चेक करेंगे दूसरा, ये दो ब्रैकेट में, ये आउटसाइड, यानी कि -2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, -2 डिवाइड बाय 3 माइनस इन द ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया दो ब्रैकेट में, आउटसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, -1/2। अगर इसका सब्ट्रैक्शन देखोगे तो आंसर आता है -11 डिवाइडेड बाय 15। दोनों देखो आंसर डिफरेंट है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, a माइनस इन द ब्रैकेट b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी आउटसाइड द ब्रैकेट c। अगर नॉट इक्वल टू है, इधर क्या देखो, इधर इक्वल टू है, इसलिए हमने क्या लिखा, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स।
तो इधर हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर विच नंबर्स, रैशनल नंबर्स। थर्ड, कौन सा है थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एग्जांपल लेता हूं, देखो इधर ध्यान से समझ में आ रहा है ना। पहले 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 हमने क्या किया था, एडिशन लिया इधर, बाद में हमने क्या किया इधर, पहले हमने एडिशन लिया, बाद में एडिशन के लिए पूरा एग्जांपल मैंने सॉल्व करके दिखाया, एडिशन कैसे करना है, समझ में आ रहा है। सब्ट्रैक्शन में अभी मैंने इधर डायरेक्ट आंसर लिखा है, इधर देखो एडिशन में पूरा दिखाया, सब ये पूरा दिखाया, सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट आंसर लिखा है, क्योंकि इधर अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करके दिखा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू नो दैट वेरी वेल सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, तो बार बार उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमने अभी इधर डायरेक्ट लिखा है, मैंने नोट्स में वो पूरा लिख के दिखाया। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो इधर। ओके, समझो एग्जाम्पल है -7 डिवाइडेड बाय 3, ओनली मल्टीप्लाई साइन आएगा इन द ब्रैकेट 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9। क्या है देखो, -7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू इन द ब्रैकेट 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 9। मल्टीप्लिकेशन अभी करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 35 डिवाइडेड बाय 54। बाद में चेंज करना है, -7 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 आउटसाइड द ब्रैकेट 2 डिवाइडेड बाय 9। इसका भी मल्टीप्लिकेशन आता है 35 डिवाइडेड बाय 54। गॉट आइडिया व्हाट आई सेड। इसका भी मल्टीप्लिकेशन आता है 35 डिवाइडेड बाय 54। तो अभी क्या लिखेंगे हम, a इंटू इन द ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। गॉट आइडिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया, यानी कि क्या, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर, इधर हमने क्या लिखा है देखो, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। क्यों लिखा है, बिकॉज बोथ आर इक्वल, इधर भी इक्वल आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, और चौथा डिवीजन, ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने अभी इधर लाइन नहीं लिखी है। कौन सी लाइन नहीं लिखी है, इधर मैंने लिखा था सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, इधर मैंने लिखा है, इधर नहीं लिखा है क्योंकि अभी ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, नोट्स में मैंने पूरा वो लिख के दिया है। ओके, तो डिवीजन का भी एक एग्जाम्पल लेंगे। अभी समझो मैंने एग्जाम्पल लिया डिवीजन के लिए, 1/2 डिवाइड बाय इन द ब्रैकेट -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। क्या एग्जाम्पल लिया है देखो, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। इसका डिवीजन आता है, अगर करके देखोगे तो अच्छी तरह से, 6 डिवाइडेड बाय -10। क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाय -10। और अगर उल्टा लिखा जाए, यानी कि ऐसे 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, इधर ये पूरा ब्रैकेट लिखता हूँ, देखो क्या लिखा है मैंने, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अगर इसका डिवीजन करके देखोगे तो इसका डिवीजन आता है -15 डिवाइडेड बाय 4। क्या आता है, -15 डिवाइडेड बाय 4। अब इधर ध्यान से देखो क्या हुआ है, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -10। और बाद में हमने क्या किया, ये देखो 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2/5 इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है, -15 डिवाइडेड बाय 4। तो इधर क्या हुआ, नॉट इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू यानी कि इसके जैसा आ गया। ओके, समझ में आ रहा है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू अगर आ रहा है तो नॉट इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, इधर हम क्या लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। समझ में आ रहा है। इधर देखो आज हमने क्या देखा है, इधर तुम कंफ्यूज मत हो जाओ, किसमें, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, वो मैंने पूरा नोट्स में सॉल्व करके दिखाया है। मैंने अभी इधर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया है। देखो एडिशन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, इधर एडिशन में क्या बताया देखो,
कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, रैशनल नंबर के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन पहला ऑपरेशन मैंने लिया, इसमें एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करके पूरा दिखाया है। एग्जांपल में हमें क्या मिला, ये आंसर और ये आंसर सेम आ गया। ओके, तो हमने क्या लिखा, कैसे लिखना है आंसर देखो, इधर मैंने दिखाया है, हियर a प्लस बी इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस बी आउटसाइड द ब्रैकेट प्लस सी फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a b एंड c। Hence addition is associative for rational numbers। हमने क्या लिखा, addition is associative for rational numbers। इक्वल आ रहा है तो associative लिखना है, इक्वल नहीं आ रहा है तो नॉट associative लिखना है। कैसे नॉट associative लिखना है, इधर मैंने दिखाया देखो, सब्ट्रैक्शन में इसका सब्ट्रैक्शन कितना आता है 19 डिवाइड बाय 30, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आता है -11 डिवाइड बाय 15। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो डिफरेंट आंसर आ रहा था। कैसे हमने लिखा, इधर देखो, a माइनस बी in bracket b minus c is not equal to in bracket a minus b outside the bracket c, outside the bracket minus c। subtraction is not associative। किसके लिए, रैशनल नंबर ही चल रहे तो रैशनल नंबर के लिए। मल्टीप्लिकेशन मैंने हमने देखा, दोनों का आंसर सेम आ गया, दोनों का आंसर यानी कि पहला आंसर -35 डिवाइड बाई 54, दूसरा आंसर भी ये सेम ही आता है। ये मल्टीप्लिकेशन करके भी तुम देख सकते हो, नोट्स में मैंने दिखा है, बार बार मैं बता रहा हूँ। a into in bracket b into c is equal to a into b outside the bracket c। इक्वल, इक्वल यानी कि क्या, एसोसिएटिव लिखना है। इधर देखो आंसर डिफरेंट आ गया, तो कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b आउटसाइड द ब्रैकेट c। ओके, यानी कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। मैं अभी नोट्स में ही दिखाता हूँ तुम्हें, नोट्स में अगर ये पेज देखोगे तो तुम्हें ध्यान से वो समझ में आ ही जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इधर मैंने पूरा लिख के दिखाया है। ओके, देखो इधर जो एग्जांपल एडिशन का मैंने उधर सॉल्व करके दिखाया था, सेम एग्जांपल मैंने इधर भी सॉल्व करके दिखाया है। इधर देखो, नोट्स के लिए पेज दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओके, ये था हमारा एग्जाम्पल। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, एसोसिएटिविटी, पहला ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। सेम एग्जांपल, यही हमने आंसर लिखा था, हियर a प्लस बी, a प्लस इन द ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी आउटसाइड द ब्रैकेट c। ये ब्रैकेट में इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट a प्लस बी आउटसाइड द ब्रैकेट c। ओके, आउटसाइड द ब्रैकेट c यानी कि प्लस c। ये ध्यान में रखो, रीडिंग करते हुए कैसे करना है देखो, a प्लस बी, a प्लस इन द ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट a प्लस बी प्लस इन द ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स, फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a b एंड c। हेंस एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। बाद में सब्ट्रैक्शन का जो मैंने डायरेक्ट आंसर उधर दिखाया था, इसका मैंने सॉल्व करके इधर दिखाया देखो। ओके, इधर देखो आंसर डिफरेंट है, तो आंसर फाइनल कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। समझ में आ रहा है, सब्ट्रैक्शन दिखा रहा हूं देखो, अभी ये आंसर डिफरेंट है, तो आंसर कैसे लिखना है, हियर a माइनस इन द ब्रैकेट b माइनस c इज नॉट इक्वल टू इन द ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट कंप्लीट माइनस c फॉर एनी 3 रैशनल नंबर्स a b एंड c। हेंस सब्ट्रैक्शन। ओके, इधर सब्स्टिट्यूशन गलती से होगा है, इधर क्या लिखना है हमें, सब्ट्रैक्शन। हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। गॉट आइडिया, अंडरस्टूड। नॉट एसोसिएटिव क्यों आ गया, फिर से बता रहा हूं देखो, इधर दोनों आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ गए, इसलिए हमने क्या लिखा इधर, हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स, इधर NU लिखा है और इधर BRS लिखा है, उधर शॉर्ट फॉर्म में। थर्ड कौन सा था, थर्ड मल्टीप्लिकेशन। इधर देखो मल्टीप्लिकेशन का वही एग्जांपल दिख रहा है उधर, ध्यान से देखो, बाद में नहीं होना चाहिए कि ये पेज नहीं दिखा, वो पेज नहीं दिखा। -35 डिवाइड बाई 54, इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने करके दिखाया है, -35 डिवाइड बाई 54।
here a into in the bracket b into c is equal to in bracket a into b bracket complete into c for any three rational numbers a, b and c, hence multiplication is associative for rational numbers. ये जो मैंने लास्ट को डिवीजन का एग्जांपल दिखाया था, इधर मैंने सॉल्व करके दिखाया है. इधर देखो आंसर क्या आया था, 6 डिवाइडेड बाय -10 एंड -15 डिवाइडेड बाय 4. 6 डिवाइडेड बाय -10 एंड -15 डिवाइडेड बाय 4. तो इधर देखो हमें क्या लिखना है आंसर में, हियर a डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट b प्लस c इज नॉट इक्वल टू इन द ब्रैकेट क्या है देखो, ध्यान से देखो फिर से, a डिवाइडेड बाय इन द ब्रैकेट b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय c. तो कैसे लिखना है, फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स a, b एंड c, हेंस डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स. ऐसे आंसर लिखना है. समझ में आ रहा है, गॉट आइडिया? ओके. उधर मैंने सॉल्व करके दिखाया था, सॉल्व करके यानी कि ये इधर मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया, उधर मैंने शॉर्टकट में लिखा था. आर यू गेटिंग? बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है. तभी सम स्टूडेंट्स दे मे गेट कन्फ्यूजन. एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये सॉल्व करके भी इधर दिखाया है. ओके. इसके लिए एक मैं एक्सरसाइज में एक टेबल भी दे रहा हूँ. ये टेबल तुम्हें सिर्फ खाली जैसे हमने पिछले टेबल कंप्लीट किए थे वैसे कंप्लीट करना है. इधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा ब्लैंक दिया है. ओके. तुम्हें लिखना है रैशनल नंबर एडिशन में क्या आती है, एसोसिएटिव आती है तो यस लिखो, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव आती है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो. मल्टीप्लिकेशन में देखो, डिवीजन में देखो, ऐसे इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. Okay, like that today we have seen the associativity property of rational numbers. I hope so you got idea about it. Remaining points will continue in the next video. और इसके बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो मुझे. ओके. अगर पर्सनली तुम नंबर पे भेजोगे तो मैं सॉल्व करके फिर से बता दूंगा और दिखा दूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके. रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.